यार सीरियसली आजकल टेक इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट ही कुछ अजीब लग रहा है. It's one word that is shaking stocks, that is making investors jittery. Artificial intelligence. Machines that think like humans. Dream of artificial intelligence has become reality. I never thought that we would be able to be doing the things we're doing with AI. We invested tens of billions of dollars before it really happened. हर तरफ सिर्फ AI, layoffs, job losses. AI is already replacing tens of thousands of jobs every month. और सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या मेरा फ्यूचर सेफ है? अगर आप भी इस एंजाइटी फेज से गुजर रहे हो, ट्रस्ट मी, you're not alone. Hi everyone, आप सभी को तो पता है कि आजकल टेक हेडलाइंस में सिर्फ AI और लेऑफ्स की बातें हो रही है. Goldman Sachs released a report saying AI can automate tasks that could impact 300 million jobs globally. In India, studies suggest that nearly 69% of IT and BPO jobs might be at risk by 2030. Companies like Amazon, Microsoft, Google, all of them are using AI to generate 25% of more of their production code, because of which the need for actual developers is reducing. मतलब सिंपल टर्म्स में जो काम पहले 10 लोग मिलके करते थे, आज AI plus 3 डेवलपर्स मिलके कर रहे हैं. तो टेंशन होना बिल्कुल नेचुरल है. इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं. कौन से स्किल्स फ्यूचर प्रूफ है, कौन से स्किल्स AI कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्या आज के टाइम में कोडिंग करना वर्थ इट भी है, और 2025 में कौन से स्किल्स सीख सकता हूँ जो मुझे 10 इयर्स तक हाई पेइंग और स्टेबल जॉब्स दिला सके. Honestly guys, if you've had these thoughts, same here. So I researched heavily on this topic, watched countless videos, read a lot of articles and spoke to a lot of professionals and asked them which skills AI truly cannot replace. Today's video will cover 5 such skills that AI cannot replace now or in the near future. And we'll also discuss the job opportunities और उनमें क्या salary package expect कर सकते हो. ये भी सारा डिस्कस करेंगे. But before we start, एक छोटा सा सवाल आपके लिए. In 2025 आपको पर्सनली कौन सा स्किल सबसे ज्यादा फ्यूचर प्रूफ लगता है, और अगर आपको अपनी करंट जॉब की जगह एक न्यू स्किल चूज करना पड़े, आप कौन सी स्किल चूज करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना, शायद आपका कमेंट किसी को गाइड कर दे. नंबर 1, प्रोडक्ट मैनेजमेंट. अब फर्स्ट स्किल जहां AI शायद डेटा प्रोसेस कर ले, लेकिन डिसीजन मेकिंग का स्वैग ह्यूमन ही दिखाता है. प्रोडक्ट मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यों बनेगा और कैसे बनेगा. What to build, why to build and how to build. They analyze the market trends, user needs, customer research और product roadmap बनाते हैं. Then they align designers and engineers, handle trade-offs and ensure that the product moves in the right direction. AI can analyze data and give reports, but the decision making, the negotiations, the vision setting, AI cannot replace that. AI cannot get product sense, which is the most important for any product, to decide its past, present and future based on the current scenarios. It requires extreme product sense and decision making power and strategies which AI cannot even come close to. Entry path: 1 to 2 years of technical experience or MBA. Direct entry into PM roles. PM roles have high demand in every major tech company, so it's foolproof. नंबर 2, टेक रिक्रूटमेंट. अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो हर टेक कंपनी को चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन. टेक रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद नहीं होने वाला. टेक रिक्रूटर्स हमेशा चाहिए होंगे, क्योंकि टेक कंपनीज को हमेशा डेवलपर, डेटा इंजीनियर्स, ML इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स चाहिए ही रहेंगे. बट यहाँ एक ट्विस्ट आ गया है. पहले क्या होता था, अगर आप जावा, पाइथन, रिएक्ट, नोड.जेएस, डेवऑप्स जानते हो तो कंपनीज बोलती थी हाँ ये बंदा ठीक है, हायर कर लो. लेकिन आज की डेट में बहुत सी कंपनीज ये सोच रही है सिर्फ स्किल इनफ नहीं है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपने काम में AI को इंटीग्रेट कर सके. कंपनीज के नजरिए से सिंपल लॉजिक है, हम ऐसे डेवलपर्स हायर करना चाहते हैं जो 1 घंटे का काम AI की मदद से 20-30 मिनट में कर दें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. तो टेक रिक्रूटमेंट डेफिनेटली कंटिन्यू होगा, लेकिन JD चेंज हो रहा है. पहले लिखा होता था रिक्वायरमेंट 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन जावा प्लस स्प्रिंग बूट, अब लिखा होगा required 3 years experience in Java plus Spring Boot and experience using AI tools like Copilot, ChatGPT in development workflow. यानी अब आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते I know coding, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा I know how to use AI to code smarter and faster. सैलरी वाइज देखा जाए तो फ्रेशर के लिए टेक रिक्रूटर देते हैं 8 to 12 LPA एंड एक्सपीरियंस के लिए देते हैं 20 to 25 LPA and more obviously. Number 3, UI UX design. The second skill where AI struggles the most because creativity and emotions cannot be engineered is UI UX designers.
UI UX designers design user experiences. They make product visually appealing and practically smooth so users feel clarity and comfort. AI suggestions तो देते हैं, लेकिन जो actual empathy, creativity और human perspective चाहिए होता है, वो सिर्फ ह्यूमंस ही दे सकते हैं। डिजाइनर्स, इंजीनियर्स के साथ मिलकर प्रोटोटाइप्स इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फीडबैक लेते हैं। ये पूरा क्रिएटिव प्रोसेस ह्यूमन ड्रिवन होता है। ये कहाँ से सीख सकते हैं? UI UX कोर्सेज कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर को 10 से 25 LPA तक एंड एक्सपीरियंस्ड को 25 से 35 LPA तक। एवरी प्रोडक्ट कंपनी एंड स्टार्टअप हायर्स UI UX डिजाइनर्स। नंबर 4, क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यस, ये वो स्किल है जहां AI सिर्फ हेल्प ही कर सकता है, रिप्लेस तो छोड़ ही दो। क्लाउड और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आज की टेक दुनिया का बैकबोन है। आर्किटेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि एप्लीकेशन स्केलेबल कैसे होगा, कौन से सर्वर्स यूज होंगे, डेटा कहाँ स्टोर होगा, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी और मिलियंस ऑफ यूजर्स हैंडल कैसे होंगे। AI यहाँ कॉन्फ़िग सजेस्ट कर सकता है, टेराफॉर्म या फिर कुबरनेटिस फाइल जनरेट कर सकता है, परफॉर्मेंस इनसाइट्स तक दे सकता है, लेकिन फाइनल आर्किटेक्चर डिसाइड करना, बिजनेस ट्रेड ऑफ समझना और हाई रिस्क डिसीजन लेना, ये सिर्फ ह्यूमन आर्किटेक्ट ही कर सकता है। सैलरी की बात करें तो वेरी हाई। सीनियर आर्किटेक्ट को 35 to 60 LPA तक मिलता है। प्रिंसिपल या लीड रोल्स, इवन हायर क्लाउड आर्किटेक्चर अभी भी और फ्यूचर में भी AI प्रूफ है, क्योंकि ये स्किल, एक्सपीरियंस प्लस जजमेंट प्लस सिस्टम थिंकिंग डिमांड करता है, जो AI बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकती। नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको लगता है हैकर्स AI से डरते हैं, भूल जाओ, हैकर्स हर रोज नए मेथड्स बना रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स डेटा, नेटवर्क और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अटैक्स एंड डैमेजेस एंड थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी रोल्स इंक्लूड सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। AI नोन थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकता है, रूटीन मॉनिटरिंग ऑटोमेट कर सकता है, बट न्यू अटैक्स पैटर्न समझना सिर्फ ह्यूमन जजमेंट का ही काम है। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स को आराम से 10 से 20 LPA तक एंड सीनियर्स को 25 से 40 LPA तक इजीली मिल जाता है। इवन गवर्नमेंट रोल्स भी अवेलेबल है। सो फाइनल थॉट्स, AI इवॉल्व होता रहेगा, नए टूल्स आते रहेंगे, लेकिन जितनी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी हो जाए, ह्यूमन टच, ह्यूमन पर्सपेक्टिव और ह्यूमन जजमेंट ये कभी नहीं रिप्लेस हो सकता। अगर आप ऐसे स्किल्स चूज करते हो जहाँ क्रिएटिविटी, एम्पैथी, विजन, लीडरशिप और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, तो बिलीव मी, आपका करियर सेफ भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा और AI आपका कंप्लीटेटर नहीं, आपका सुपर पावर बन जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। That's all from my side। लेकिन अब सवाल आपके लिए, का नेक्स्ट स्किल क्या होगा और क्या आप AI के साथ ग्रो करने के लिए रेडी हो? कमेंट्स में मुझे बताओ। आई एम एक्साइटेड टू सी योर प्लान्स। See you in the next video।